Very good evening to one and all, ladies and gentlemen. Once again, I'm back with another and amazing video of reading section, and this is my second video of a reading section. In this video, we are going to explain Indian civilization and culture. And if you are a student of class 12th, then I'll suggest you please go back and visit my playlist. After that, you have a right approach. So in this video, basically we are going to talk about Indian civilization and culture. And may I know, guys, who is written Indian civilization and culture? Mahatma Gandhi. Very nice. And for your kind information, guys, let me clear, these are my panelist fellow partners, and these are a student of class 12th. And if you are a student of class 12th and you wanna improve your English, you wanna start studying English grammar, then this video is really very beneficial to you all, guys. So without any further delay, let's get started. So first, let me clear the terms and conditions. My terms and conditions, guys, if I complete one sentence in English, same sentences you have to repeat after me in Hindi. Are you ready? Yes, sir. Are you ready, guys? Say loudly with me. Are you ready? Yes, sir. Say hi. Say hi to everyone. And behind camera, Mr. Pankaj is working, and thank you so much, Mr. Pankaj bhai. So without any further delay, let's start. Online, please pay attention. I think it's visible. About Mahatma Gandhi, we have covered in my previous section. We have explained about Mahatma Gandhi, the author of Indian civilization and culture. So without any further delay, let's start the paragraph 1. So I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. Miss, आप बताएंगे, एक माइक ये ले लीजिए, आप पास कर दीजिएगा, हम जिनको बताएंगे. मेरा मानना है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है वो मेरा यह दुनिया में अपराज्य है. Very nice. Nothing can equal the seeds sown by our ancestors. Rome went, Greece here, the same fact and the might of pharaohs was broken. Japan has become westernized. Of the China can nothing be said. आप बताएंगे इसको, आप मिस पुष्पांजलि, इनको पास कीजिए माइक. कोई भी चीज हमारे पूर्वजों के द्वारा बोए के बीजों की बराबरी नहीं कर सकती. रोम गुजर गया, ग्रीस ने वहीं भाग साझा की. फॉरेस्ट की ताकत टूट गई और जापान का पश्चिमीकरण हो गया. और चाइना के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता. अभी तो हम पढ़े ही नहीं है. पढ़ दिए हैं सर. अच्छा, चलिए बोलिए. अच्छा, हम बोलें. बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और द साउंड एट द फाउंडेशन. लेकिन भारत ने अभी भी किसी न किसी नींव पे टिका हुआ है. वेरी नाइस. अब हम माइक को देना चाहेंगे मिस नेहा के हाथों में. कहाँ थे हम लोग? अच्छा, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी. यूरोप के लोग ग्रीस और रोम के लोगों के लेखन से अपना सबक सीखते हैं, लेकिन वो अब अपने पुराने वैभव के अस्तित्व में नहीं है. वेरी नाइस. इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम. उनसे सीखने की कोशिश में यूरोपीय लोग कल्पना करते हैं कि ग्रीस और रोम की गलतियों से कैसे बचेंगे. वेरी नाइस. सच इज देयर प्रेक्टिकल कंडीशन. ऐसे दयनीय स्थिति है. वेरी नाइस. बहुत सुंदर. Really you are practicing and you are improving yourself. Now you pass the mic Miss अनुराधा. आप अनुराधा को माइक पास. चलिए हम लोग सेकंड पैराग्राफ पे आ गए हैं. सेकंड पैराग्राफ की बात करते हैं. In the midst of all this, India remains immovable and that is her glory. इन सब के बीच भारत अडिग है और यह उसकी महिमा है. It is a charge against India that her people are uncivilized, ignorant and spoiled. That is not possible to induce them to adopt any changes. भारत के खिलाफ यह आरोप है कि वहाँ के लोग अज्ञानी तथा अडिग होते हैं और उन्हें किसी भी बदलाव के प्रति प्रेरित करना संभव नहीं है. नाउ हम मूव करना चाहेंगे माइक इनको. आज सबसे पहले तो डरना नहीं है, ठीक है? कैमरे में देखते हुए बोलना है. यस. इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट. ये हमारे मेघा के एक विरुद्ध है. यह हमारे मेघा के विरुद्ध एक आरोप है. वेरी नाइस. व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनेबल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज. हमने अनुभव के निहाई पे जिसका परीक्षण किया है वह सही पाया है. हम उसे बदलने की हिम्मत नहीं करते. हमें उसे बदलने की हिम्मत. वेरी नाइस. बहुत सुंदर मिस आरती. मेनी थ्रस्ट
their advice upon India and she remains steady. बहुत सारे लोग भारत पर अपने खिलाफ थोप देते हैं और यही उसकी सुंदरता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए अब हम चाहेंगे माइक पास करेंगे अब विजय भाई को। अच्छा चलिए पुष्पांजलि को, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहाँ थे हम लोग? कहाँ याद दिलाइए। It is the seat anchor of ओके, दिस इज हर ब्यूटी, इट इज द सी एंकर ऑफ आवर होप। यही उसकी सुंदरता है और यही उम्मीदों के रक्षक है। Very nice. Civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty. और सभ्यता आचरण का वह तरीका है जिसमें मनुष्य अपने कर्तव्य पद को सीखता है। चलिए वेरी नाइस। अब हम चाहेंगे फिर से माइक मिस नेहा के हाथ। Civilization is that mode of conduct which ये तो हो गया। Performance of duty and observance of morality are convertible terms. कर्तव्य का प्रदर्शन और नैतिकता का पालन एक प्रदर्शन ये शब्द है। To observe morality is to attain mastery over our minds and our passions. नैतिकता का पालन करना हमारी मन और हमारी वासना पर महारत हासिल करना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब हम चाहेंगे अनुराधा को पास करेंगे माइक। So doing we know ourselves. ऐसा करने से हम खुद को जान पाते हैं। The Gujarati equivalent for civilization means good conduct. सभ्यता का गुजराती समकक्ष अच्छा आचरण है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब हम चाहेंगे मिस क्या नाम है आपका? अनु से जानने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग आ चुके हैं पैराग्राफ 4 पे। इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी। यदि यह परिभाषा सही है कि भारत के लेखकों को कोई पता ना, भारत के लेखकों ने दिखाया है कि कुछ इसी इंडिया को भारत को किसी से सीखना नहीं चाहिए। यदि ये ऐसा ही है जैसा होना चाहिए। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, माइंड ब्लोइंग मिस अनु। नाउ अब हम आ चुके हैं पैराग्राफ 5 की ओर और एक वीडियो में पैराग्राफ 5 तक की बात करेंगे और अगले वीडियो में हम पैराग्राफ 5 फिर लेकर आएंगे। यानी आई थिंक टोटल 24 पैराग्राफ है इसमें और 24 पैराग्राफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पे 5 वीडियो हम शूट करेंगे। मे बी इट विल टेक सम टाइम। अब हम बात करते हैं पांचवें की बात करते हैं। पांचवें की बात आपसे करें, क्या नाम है आपका? चांदनी। वेरी नाइस चांदनी। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। मन एक बेचैन पक्षी की तरह चलिए मन जो है एक बेचैन पक्षी की तरह है। गांधी जी बताते हैं द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। हम विजय भाई से जानना चाहेंगे द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। या वैसा ही है। मन एक बेचैन पंछी है। हम जितना चाहते हासिल करना चाहते हैं करते हैं, यह मन उतना ही। ओके, वेरी नाइस। एक्चुअली गांधी जी ये बताना चाह रहे हैं मन जो है एक बेचैन पक्षी की तरह है। हम जितना अधिक पाते हैं उतना ही अधिक और चाहते हैं कि और कुछ हमें मिले। अगले बात करें, अगले की बात करें आपसे किन से बात करें अगले? चलिए द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। यह जितना अधिक पाता है उससे ज्यादा यह हासिल करता है, फिर भी यह असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकेम। हम अपनी वासनाओं में जितने अधिक लिप्त होते जाते हैं वे इतने ही अधिक बेलगाम होते जाते हैं। वेरी नाइस। अब हम चाहेंगे माइक को पास अनुराधा को करें आप, उसके बाद आरती की पास फिर आते हैं। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू इंडल्जेंस। हमारे पूर्वजों ने इंडल्जेंस के लिए एक सीमा तय की। वेरी नाइस। अब आरती को आप पास कर देंगे। आरती दिस सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। उन्होंने बताया है कि खुशी हद से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यह मानसिक स्थिति है। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इन बच्चियों के द्वारा इस 5 पैराग्राफ को एक्सप्लेन किया गया। और यदि आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, आप भी चाहते हैं कि पूरा एक्सप्लेनेशन, इस पूरे बुक का एक्सप्लेनेशन, हम बेसिकली प्रोज सेक्शन की बात करना है। इस प्रोज सेक्शन में पहला चैप्टर हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। इसमें पैराग्राफ 24 है, जिसमें से 5 पैराग्राफ की हमने बात करी है इस वीडियो में। और पिछले वीडियो में हमने अबाउट ऑथर
अबाउट महात्मा गांधी वी हैव एक्सप्लेन, हमने महात्मा गांधी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है. यदि आप पहली बार इफ यू वाचिंग दिस वीडियो एट फर्स्ट टाइम देन आई सजेस्ट यू प्लीज गो बैक एंड वॉच माय प्रीवियस सेक्शन एंड आफ्टर दैट वॉच दिस वन. Okay, so thank you so much for giving your precious time. Thank you so much for watching this video. And if you watching this video on Facebook, then this is my YouTube channel, you can see, and please visit my YouTube channel and subscribe, like and share also, because whenever I upload any kind of video then I will get the notification at the right time. Now the time gets over. Be happy, like always. Tata, bye bye.